So we have seen some queries related to MySQL. आपको MySQL में डेटा कैसे रिट्रीवल करना है. We have seen lot of queries. Some portion have been left, बहुत small portion है. We will cover to that also. But now let me introduce to you with how we can create a set of tables into a database. I have already given you a script that you have used to create your tables. But actually we have not discussed how those tables commands, table creation queries were created, and what is the meaning of them, what are their structure and so on. So before going to that, first let's talk about something about integrity constraints, okay, so that we can understand all the topics in entirety. So integrity constraints are actually the set of rules that you impose on your database so that it will remain in consistent state. Always it will remain in consistent state. So consistent state का मतलब है it will always remain correct, or it will not have any kind of wrong information at any moment. ठीक है. So wrong information का मतलब यहाँ पर wrong term जो information है, that term is having a notion that is dependent on the organization itself. For example, in some organization, let's say university का example लेते हैं. If let's say some university doesn't have negative marking, okay, some university doesn't have negative marking, so obviously in any course student cannot get negative mark, है ना. So that means marks given in a received by a student in a subject will be between 0 and let's say 100, है ना. Usually 100 होता है, so that's why I have taken it. So since no negative marking is there, so students marks minimum may be 0 and maximum may be 100. Now in a university you would like to enforce this rule that accidental input or change into the marks of any course should not happen. ठीक है. नाउ एक्सीडेंटल इनपुट से मतलब मेरा है कि कोई गलती से भी ऐसा रॉन्ग इनपुट ना क्रिएट कर दे जिसमें आपके मार्क्स किसी स्टूडेंट के किसी कोर्स में नेगेटिव हो जाए. बिकॉज इन योर यूनिवर्सिटीज़ केस देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, so that's why there is no possibility of having any student having a negative mark in any course. और अगर नेगेटिव है that means your database has entered into a इनकन्सिस्टेंट स्टेट. सो ध्यान रखना, दो टेक्निकल वर्ड यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ. लेट मी टेक द न्यू स्क्रिप्ट. आई एम यूजिंग टू वर्ड्स, कंसिस्टेंट स्टेट. सो एक डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में कहलाता है अगर every information is as per the integrity constraints of an organization, or you can say simple term में, अभी मैं simple term में आप कह सकते information is correct, information is correct. हालांकि correct बोलना बहुत अच्छा टेक्निकल वर्ड नहीं है, बट फॉर द टाइम बी लेट्स बियर विद दैट. कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट. ठीक है. ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट in your database, ठीक है. दूसरी स्टेट हो सकती है आपको, वी विल से दैट योर डेटाबेस इज इनकंसिस्टेंट स्टेट. दैट मीन्स some information is not correct. ये बहुत लूज टर्म्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ. ठीक है. सम इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कुछ गलती है. गलती का मतलब वो आपके या तो उसमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, नॉट एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन है, और इट मे बी द इन्फॉर्मेशन दैट इज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज. ठीक है. और सिंपली हम जनरली हम इसे बोलते हैं कि वो किसी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को वायलेट कर रहा है एक्चुअली. सो आपका डेटाबेस दो स्टेट में हो सकता है. इट मे बी इन कंसिस्टेंट स्टेट और इट मे बी इन इनकंसिस्टेंट स्टेट. सो इट इज़ ऑलवेज डिजायरेबल दैट योर डेटाबेस
should remain always in this state, consistent one. ठीक है. Now question arise होता है why your database may enter from this state to this state. इस स्टेट से यहाँ क्यों जा सकता है, इनकन्सिस्टेंट में क्यों जा सकता है? बिकॉज समटाइम्स मे बी बिकॉज डेटाबेस आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय मैनी यूजर्स. सो सारे यूजर्स उसमें डेटाबेस के तो एक्सपर्ट नहीं होंगे, है ना. दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स कि डेटाबेस में कैसा डेटा जाना चाहिए, और समटाइम्स दे एक्सीडेंटली में एंटर द रॉन्ग डेटा. ठीक है, समटाइम्स एक्सीडेंटली रॉन्ग डेटा एंटर कर सकते हैं, या फिर समटाइम्स दे में भी जानबूझ करके भी कर सकते हैं, है ना. सो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर. योर डेटाबेस में माइट हैव रॉन्ग वैल्यू फॉर सम इंफॉर्मेशन और सम एट्रीब्यूट. ओके, सो ये जो रॉन्ग वैल्यू है या तो एक्सीडेंटली एंटर हो जाएगी. समटाइम्स जो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स जो रन कर रहे हैं डेटाबेस पर, जो फंक्शंस रन कर रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स जो रन कर रहे हैं, उनमें प्रोग्रामर ने जो है प्रोग्रामिंग में कुछ मिस्टेक की है, उसकी वजह से भी आपका डेटाबेस रॉन्ग स्टेट में, दैट मीन्स इनकन्सिस्टेंट स्टेट में जा सकता है. ओके, तो आपको इनका डेटाबेस को हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में मेंटेन रखना है. तो कंसिस्टेंट स्टेट में मेंटेन करने के लिए एक तो है कि आप मैनुअली हर पर्सन जो भी इनपुट करने जा रहा है और इनपुट कर रहा है उस टाइम पर आप चेक करते रहिए. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू. यू कैन नॉट रेगुलेट और यू कैन नॉट ऑब्जर्व और मॉनिटर एनी वन हु इज एंटरिंग वट, है ना. सो नाउ यू नीड टू हैव ए मैकेनिज्म, यू रिक्वायर टू हैव ए मैकेनिज्म जिसमें डेटाबेस खुद ही अपने आप को कंसिस्टेंट मेंटेन रखे. दैट मीन्स डेटाबेस इटसेल्फ इम्प्लीमेंट सम चेक एंड बैलेंसेस. ठीक है, सो दैट wrong information may not enter into your database. So in order to avoid these kind of wrong information, या जनरली हम उसे बोलते हैं inconsistent information, we employ certain checks or we put some checks over databases. That checks are called integrity checks or integrity constraints. ठीक है, इंटीग्रिटी का वैसे जो मतलब होता है वो लगभग करेक्टनेस ही होता है. इंटीग्रिटी मतलब डेटाबेस करेक्टनेस स्टेट में रहे, करेक्ट न रहे, सही रहे. सही का मतलब आपके एज पर पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशंस की, डेटाबेस उसी हिसाब से करेक्ट स्टेट में रहे. ठीक है, सो वी कॉल देम करेक्ट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स का मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है. तो हमने डेटाबेस पर कुछ ऐसे रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, किस पर लगाए, उसमें डेटाबेस में जो डेटा मॉडिफिकेशन के जो फंक्शंस हैं या यूजर्स हैं, जो प्रोसेस हैं, उन पर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. सो दैट नाउ डेटाबेस ऑलवेज चेक कि जब भी किसी टेबल में डेटा मैनिपुलेट हो रहा है या चेंज हो रहा है, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे या नहीं हो रहे हैं. सो एनी मॉडिफिकेशन दैट इज गोइंग टू वायलेट एनी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, डेटाबेस विल ब्लॉक दैट मॉडिफिकेशन और विल स्टॉप दैट मॉडिफिकेशन. वो उसे विल नॉट परमिट दैट मॉडिफिकेशन. Okay, and it will only permit those modifications that are satisfying all these integrity constraints. So integrity constraints are the set of rules that you impose over your database to maintain its correctness. ठीक है, a set of restrictions, you can say restrictions that are imposed on a database to maintain its correctness. ठीक है, its correctness और its integrity टर्म में लिखता हूँ ज़्यादा बेटर, its integrity. So integrity का मतलब कुछ करेक्टनेस है, ये मतलब इंफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं आए, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का मतलब जो आपके रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करे, करेक्ट डेटा की करेक्टनेस से रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको वायलेट करे. सो दीज कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. सो दीज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर चेक्ड एवरी टाइम. ठीक है, जब भी आप डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन करने जाएंगे तो रिक्वायर्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स विल बी टेस्टेड अगेंस्ट दैट मॉडिफिकेशन, एंड इफ दैट मॉडिफिकेशन इज consistent with these constraints, modifications will be allowed, otherwise modifications will not be allowed. Okay, I think now you might have understood, or you may have understood all these stuffs. Okay,
सो देर में भी वेराइटी ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको मेंशन किया। यू माइट रिक्वायर टू इंश्योर मिनिमम बैलेंस। तो एक अगर बैंक के एग्जांपल की बात करें तो बैंक में हो सकता है सेविंग अकाउंट में एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि बैलेंस शुड नॉट गो लेस देन 1000। सो जो विड्रॉल जो भी प्रोसेस होगी, विड्रॉल जो अकाउंट का जो विड्रॉल हो रहा है या ट्रांसफ़र जो ट्रांजेक्शन चला रहे हैं आप, ऑनलाइन बैंकिंग मान लीजिए आप कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स शुड बी चेक्ड बिफोर टेकिंग इनटू इफेक्ट कि इनकी वजह से बैलेंस 1000 से नीचे तो नहीं चला जा रहा है। अगर 1000 से नीचे जा रहा है दैट मीन्स यू शुड स्टॉप दैट मॉडिफिकेशन और ट्रांजेक्शन। ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। समटाइम्स आप सैलरी को, किसी पर्सन की सैलरी आप चाहते हैं नल नहीं हो सकती, सैलरी वैल्यू शुड बी देयर, सम सैलरी शुड बी देयर, यू माइट इम्पोज दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट। स्टूडेंट्स के मार्क्स जैसे मैंने अभी बताया नेगेटिव नहीं होंगे। आप ग्रेड किसी स्टूडेंट के हैं तो इनमें से नहीं होना चाहिए, इनसे के अलावा कोई नहीं होना चाहिए A+A B+B और so on। अगर यूनिवर्सिटी में जो ग्रेड है तो ओनली मान लीजिए यही पॉसिबल ग्रेड की वैल्यू है, तो किसी भी स्टूडेंट के किसी भी कोर्स में ग्रेड की वैल्यू इस सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के हम कंस्ट्रेंट्स इम्पोज करते हैं डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, सो दैट डेटाबेस रिमेन इन करेक्ट स्टेट। नाउ देयर आर सम मोर कंस्ट्रेंट्स। अब आपने अभी कई वी हैव सीन डेटा रिलेशनल डिजाइन, तो वहाँ से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स दैट यू विल पुट ऑन योर डेटाबेस, ठीक है। सो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं हम उन्हें किसी न किसी फॉर्म में मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स ओवर डेटाबेस। So some of these constraints that we usually will put on databases are that one is primary key constraint. Now आप जानते हैं हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। You know that basic requirement of your relational model is each table should have a primary key. क्यों required है? CORD have said that. CORD ने ऐसा क्यों कहा? Because CORD wanted that whenever you are storing something in your database in a table, then ईच रिकॉर्ड शुड बी एड्रेस्ड यूनिकली। अदरवाइज क्या होगा, आप अगर ईच रिकॉर्ड को यूनिकली एड्रेस नहीं कर पाएंगे दैट मीन देन यू विल नॉट बी एबल टू रिट्रीव डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, सो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज नेसेसरी। ओके, सो यू नीड टू इम्पोज दिस कंस्ट्रेंट। सो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नंबर इज ए प्राइमरी की फॉर ए स्टूडेंट, है ना। वी जनरली use enrollment number as a primary key. So whenever you are entering a record of a student in a table, so आप किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड 2 बार एंटर ना कर दें, पहली चीज़, ठीक है, और हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आप यूनिकली पहचान पाएँ, सो दैट एनरोलमेंट नंबर वाज एडेड। अब मान लीजिए इमेजिन करिए 2 हिमांशु कुमार नाम के स्टूडेंट हों और एक ये हिमांशु कुमार आते हैं और COE से बोलते हैं कि मेरा ट्रांसक्रिप्ट दे दीजिए मैडम, मेरी जॉब लग गई है, माई कंपनी इज रिक्वायरिंग मी टू गिव द ट्रांसक्रिप्ट। इन्होंने ईमेल कर दिया एंड अज्यूम कर रही है कि यूनिवर्सिटी ने एनरोलमेंट नंबर का मैकेनिज्म रखा ही नहीं है। ना हिमांशु कुमार 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जब COE ने मान लीजिए बोला क्लर्क से कि डेटाबेस से जाकर डेटा निकाल के लाइए, एंड देन वो क्लर्क केम अप विथ 4 और 5 स्टूडेंट्स कि ये हैं 4 हिमांशु कुमार मैडम, कौन सा वाले हिमांशु ने मांगा है आपसे रिजल्ट। COE will not be able to decide, है ना। So if COE ने, so university have done smartly work, actually all does this. So each student is assigned a unique roll number. So now within university at different time, no student will have same enrollment number. So now हिमांशु अपना enrollment number देंगे यूनिवर्सिटी में, COE will tell the clerk that give this enrollment number and bring the details of all the courses and their grades so that we can prepare the transcript. और तुरंत वो ना क्लर्क लेके आ गया, because there is only one enrollment number that Himanshu have mentioned, his own roll number. So that means his information can be clearly retrieved. So this is a kind of integrity constraint that is necessary. नहीं तो आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं रहेगा एक तरीके से। कंसिस्टेंट स्टेट हम इनकंसिस्टेंट स्टेट हम क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज इन ए टेबल 5 हिमांशुज आर देयर, यू विल नॉट बी एबल टू रिट्रीव देम प्रॉपरली, है ना। सो दिस इज एक्चुअली एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट दैट यू विल इन्फोर्स ऑन योर डेटाबेस। सो एवरी टेबल हैव ए प्राइमरी की, ठीक है। सो वी विल सी दैट हाउ वी विल डिफाइन प्राइमरी की। Then there is another constraint that is called unique constraint. यूनिक कंस्ट्रेंट मतलब
समटाइम्स क्या होता है, देर आर मे बी वन और मोर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी दैट मे बी यूनिक फॉर ईच ऑफ द एंटिटीज। लाइक आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर्स आर द एंटिटीज, ईच इंस्ट्रक्टर विल हैव ए पेन नंबर, है ना, एंड पेन नंबर इज यूनिक। यू कैन नॉट हैव टू इंस्ट्रक्टर्स हुज पेन नंबर आर सेम, है ना। इंस्ट्रक्टर हैव इंस्ट्रक्टर आईडी दैट इज अ प्राइमरी की, पेन नंबर इज नॉट द प्राइमरी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पेन नंबर से मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए इंस्ट्रक्टर आईडी इज मोर रेलिवेंट, नॉट पेन नंबर, ठीक है। पेन नंबर मे बी रिलेवेंट फॉर मे बी अकाउंट सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी और मे बी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। सो देर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट आर possessed by the entity set that are unique for that all within that entity set, but they are not very much useful for them for an organization, बहुत critical नहीं है जो प्राइमरी की हम उसे बना दें। So such time you might want to enforce a constraint that pen number should be unique. So आप unique constraint define कर सकते हैं। So unique constraint will not allow any two employees will having same pen number, ठीक है। सो दो इंस्ट्रक्टर्स के पेन नंबर अब सेम नहीं हो पाएंगे जब अगर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट पेन नंबर पर लगा दिया है तो, ठीक है। मान लीजिए इंस्ट्रक्टर टेबल में पेन नंबर भी है और उस पर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो आप कोई भी दो अलग अलग फैकल्टी के लिए सेम पेन नंबर इनपुट नहीं कर पाएंगे और डेटाबेस विल स्टॉप दैट मॉडिफिकेशन। तो अगर मान लीजिए आप एक रिकॉर्ड इनपुट कर रहे हैं और इसमें एक ऐसा पेन नंबर डाल रहे हैं जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वहाँ पर टेबल में, तो ऐसे रिकॉर्ड के इंसर्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा डेटाबेस के द्वारा। क्यों? क्योंकि दैट इंसर्शन विल वायलेट दिस कंस्ट्रेंट इन यूनिक कंस्ट्रेंट। देन देयर इज ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में डिटेल में, ठीक है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट का हम काम यूज करते हैं कई बार एक टेबल के डेटा को हम किसी दूसरी टेबल में क्रॉस चेक करके मैच कराते हैं कि ये वहाँ है या नहीं है, वहाँ है तभी हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कई बार होता है ना, आप जाके बताते हो कि मुझे हॉस्टल से अपना बिलोंगिंग लेना है, COE ऑफिस में बोल रहे हो, या यू आर सेइंग समथिंग, तो योर रिकॉर्ड नीड टू वेरीफाइड इन द हॉस्टल। तो आपका डेटा हॉस्टल में है, आप क्लेम करते हैं कि आई एम ए हॉस्टलर, तो आपका डेटा चेक करना पड़ेगा कि आर यू ए रियली ए हॉस्टलर। और हॉस्टलर होने से पहले साथ में ये भी ज़रूरी है कि यू आर सम स्टूडेंट इन सम डिपार्टमेंट अंडर सम प्रोग्राम, है ना। तो कई बार एक यूज़र का जो डेटा है, एक टेबल में जो डेटा है, उसे हमें दूसरी टेबल के साथ क्रॉस चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाते हैं, ओके। Then there is one more constraint that you can put, that is called business constraint or check constraint. So check constraint is a kind of constraint that actually you impose because of policy of an organization that जिसके लिए आप मॉडल ऑटोमेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के केस में मार्क्स के लिए एक कंस्टेंट हो सकता है कि मार्क्स 0 से 100 के बीच में होना चाहिए। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है मार्क्स नेगेटिव अलाउड है, तो -50 से लेकर के या -100 से लेकर के +100 तक के मार्क्स हो सकते हैं। बैंक में किसी में पॉलिसी हो सकती है कि किसी बैंक में अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1000 रिक्वायर्ड है सेविंग में, किसी बैंक में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5000 अलाउड है, किसी में 10000 अलाउड है। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव डिफरेंट पॉलिसीज। सो उनकी पॉलिसी की वजह से कुछ जो कंस्ट्रेंट आप लगाते हैं, दोज कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड बिजनेस कंस्ट्रेंट, और इसे हम चेक कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं बिकॉज हम इसे चेक कीवर्ड की मदद से लगाएंगे, okay. So these are the constraints that have been imposed or that need to be imposed because of the organization's policy, ठीक है। So those constraints come under this category. Then not null constraint, आप जानते हैं पहले कई कॉलम में हम चाहेंगे कि इसमें वैल्यू नल ना आए, है ना, नल वैल्यू ना आए, तो उन पर हम नल कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, कई बार आप किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं बिकॉज देयर इज नो वैल्यू, देन दिस इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू दैट नीड टू बी टेकन बाय द डेटाबेस। सो दीज आर द सम ऑफ द कंस्ट्रेंट्स दैट आर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स दैट यू इम्पोज ऑन योर डेटाबेस। वी विल see them one by one. Then these columns can be classified into some categories. So generally हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, कॉलम कंस्ट्रेंट एंड टेबल एंड कॉलम कंस्ट्रेंट्स, या कहिए टेबल कंस्ट्रेंट्स। सो आप जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको दो तरीके से बांट सकते हैं, कॉलम कंस्ट्रेंट एंड टेबल कंस्ट्रेंट्स। सो कॉलम कंस्ट्रेंट का मतलब है आप इन कंस्ट्रेंट्स को केवल कॉलम जब इसकी डेफिनेशन दे रहे हो उसी टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो। टेबल कंस्ट्रेंट्स वो कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें आप जब मल्टीपल कॉलम्स पर लगाते हैं, दोज आर कॉल्ड टेबल कंस्ट्रेंट्स, और इनको आपको कॉलम्स की डेफिनेशन के बाद डिफाइन करना होता है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा
आई विल वी विल टॉक अबाउट देम लेटर। ठीक है, समटाइम्स कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो सिंगल कंस्ट्रेंट पर सिंगल टेबल पर लगते हैं और कुछ टू टेबल्स पर लगते हैं। जैसे कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट आपका लगाने के लिए दो टेबल्स रिक्वायर्ड होती हैं, दो टेबल्स के बीच में लगता है। सो इट इन्वॉल्व टू टेबल्स। There are rest of the constraints like not null or unique constraint. All these are imposed on a single table. So these are single relation constraints. So ये कुछ classification है. Now let's talk about the uh, how you create a table. ठीक है, so table create करने के लिए you need to use create table command. You have already seen that, है ना, create table. So कोई भी टेबल आपको डेटाबेस में क्रिएट करना है, यू नीड टू क्रिएट अ टेबल, लाइक यू नीड टू राइट क्रिएट टेबल, देन लेट मी डिफाइन itself. सो जब आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है डेटाबेस में, यू विल यूज क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट टेबल, देन यू नीड टू गिव टेबल नेम। ठीक है, जो भी आप टेबल का नाम रखना चाहते हैं, टेबल नेम। ठीक है, फिर ब्रैकेट में कॉलम 1, डेफिनेशन ऑफ कॉलम 1, कॉलम 1 डेफिनेशन, कॉमा कॉलम 1 डेफिनेशन, कॉलम 2 डेफिनेशन, दूसरा कॉलम जो है उसकी भी डेफिनेशन आप देंगे, फिर कॉमा एंड सो ऑन, और फिर फाइनली कॉलम एम्स डेफिनेशन, एम्थ जो कॉलम है आपका उसकी डेफिनेशन देंगे आप। जब ये हो जाएगा कॉमा लगा के, देन आप इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं आप वो डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। जो भी जितने भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं आप यहाँ डिफाइन करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली यू विल क्लोज दिस ब्रैकेट और सेमीकोलन लगा देंगे। सो दिस इज योर टेबल डेफिनेशन। और लेट मी गिव वन एग्जांपल। जैसे आपने इंस्ट्रक्टर टेबल डिफाइन की थी, लेट्स डिफाइन इंस्ट्रक्टर टेबल। सो इंस्ट्रक्टर टेबल को डिफाइन करने के लिए आपने कुछ ऐसे किया होगा, क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो आपने क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर, देन कॉलम की डेफिनेशन। नाउ कॉलम की डेफिनेशन में लेट मी शो यू द स्क्रिप्ट, हम वहीं पर डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। 1 मिनट, वो जो स्क्रिप्ट है मैंने आपको शेयर की थी, वहाँ पे सारा चीज़ है, SQL स्क्रिप्ट फॉर MySQL। सो मैं MySQL के रेफरेंस में ये डिस्कस कर रहा हूँ। टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर देता हूँ इसको। यू कैन सी दिस वेयर इंस्ट्रक्टर, चलो ये स्टूडेंट पर आ जाते हैं। यू कैन सी क्रिएट टेबल, दिस इज द कीवर्ड आपको लिखना है, देन टेबल का नाम। ठीक है, नाउ विद इन द पैरेंथेसिस आपको टेबल के जो कॉलम्स हैं उनकी डेफिनेशन देना है। सो यू कैन सी दैट कॉलम 1 की डेफिनेशन आपने यहाँ दी है, कॉलम 2 की डेफिनेशन आपने सेकंड रो में दी है। आप एक ही रो में कर सकते हैं, कॉमा सेपरेट रखना है। कॉलम 2 की डेफिनेशन, कॉलम 3 की डेफिनेशन, कॉलम 4 की डेफिनेशन, देन आपने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाए 2, एंड देन यू आर डन। सो दिस इज द जनरल सिंटेक्स। देन नाउ कॉलम की डेफिनेशन में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। योर कॉलम डेफिनेशन कंटेन्स 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आप बताएंगे नेम ऑफ द कॉलम। सो कॉलम डेफिनेशन के लिए जो स्ट्रक्चर है, लेट मी राइट डाउन हियर, इसको छोड़ देते हैं। सो कॉलम डेफिनेशन जब आप कर रहे हैं तो कॉलम डेफिनेशन में पहले नेम ऑफ द कॉलम आप देंगे। ठीक है, लेट मी राइट कॉलम नेम। सो सबसे पहले आप कॉलम नेम देंगे, देन डेटा टाइप देंगे कॉलम का। ठीक है, डेटा टाइप के साथ साथ हम समटाइम्स आपको साइज भी बताना पड़ता है। ठीक है,
सो जनरली आप उसे आप डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, या स्टेप इसको डेटा टाइप की जगह पर कहिए डोमेन कहिए, इट इज़ बेटर टू कॉल इट डोमेन। सो डेटा टाइप प्लस साइज आपको बताना पड़ता है। सम कॉलम्स मे नॉट रिक्वायर साइज, सो हम इसको जॉइंटली बोलते हैं, दैट मीन्स यू आर डिफाइनिंग द डोमेन। सो पहले आप कॉलम का नाम डिफाइन कर रहे हैं, हियर यू आर डिफाइनिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू दिस कॉलम विल टेक, देन एनी कॉलम कंस्ट्रेंट यू वांट टू स्पेसिफाई। अगर आप कोई कॉलम कंस्ट्रेंट यहाँ लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, फिर कॉमा। सो दिस इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ ए कॉलम्स डेफिनेशन। पहले आपको कॉलम का नाम देना है, देन उसका डोमेन डिफाइन करना है। डोमेन में दो चीज़ें रहेंगी, डेटा टाइप एंड साइज। सम डोमेन्स मे नॉट रिक्वायर द साइज। देन कॉलम पर आपको कंस्ट्रेंट लगाना है तो उनकी लिस्ट, ठीक है, स्पेस रहेगा बीच में, मल्टीपल कॉलम कंस्ट्रेंट्स आप लगा सकते हैं। ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कॉलम कंस्ट्रेंट्स, दैट मीन्स ऑल दोज कंस्ट्रेंट्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए सिंगल कॉलम, ठीक है। सो कॉलम कंस्ट्रेंट आप रख सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द एग्जाम्पल in our script. So you can see that here id is your name of the column, varchar data type and 5 is the size. So आप देख रहे हैं साइज कैसे लिख रहे हैं आप ब्रैकेट में, कॉमा। नाउ इसमें आप देखेंगे, आप ये जो कंस्ट्रेंट लगाते हैं कॉलम कंस्ट्रेंट, ये ऑप्शनल है, ओके। देन यू कैन सी नेम, दूसरा कॉलम, कॉलम का नाम, देन कॉलम का डेटा टाइप आपने लिखा varchar 20। आप कह रहे हैं कि इसमें डेटा टाइप varchar होगा और लेंथ 20 होगी। एंड अगेन आपने यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, नॉट नल, ठीक है। सो दिस इज अ कंस्ट्रेंट। सो नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है यू आर नॉट अलाउइंग नल वैल्यू इन दिस कॉलम। सो इस कॉलम में अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे नल वैल्यू किसी भी इंसर्ट कमांड से, तो वो इंसर्ट कमांड रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि नल वैल्यू इज नॉट अलाउड इन दिस कॉलम। तीसरा कॉलम आपने देखेंगे कॉलम नेम एंड डेटा टाइप varchar 20, कॉमा, कोई कंस्ट्रेंट इस पर नहीं लगाया। चौथा टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट इसमें आपने इस कॉलम के बारे में लिखा कि कॉलम न्यूमेरिक टाइप का होगा और 3 और 0 आपने इसकी लेंथ साइज बता दिया, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दैट आई हैव दैट वन कंस्ट्रेंट हैज बीन पुट, चेक कंस्ट्रेंट, दिस इज कॉल्ड चेक कंस्ट्रेंट। तो चेक कंस्ट्रेंट लगाने के लिए चेक कीवर्ड लगाते हैं, विद इन ब्रैकेट आप कंडीशन बता देते हैं। तो आपने लिखा टोटल क्रेडिट, दैट मीन्स दिस कॉलम्स नेम total credit greater than or equal to 0. So you are putting a constraint here, ठीक है, एंड सेइंग दैट कि जो टोटल क्रेडिट वैल्यू है वो 0 या उससे बड़ी होना चाहिए। दैट मीन्स किसी भी कोर्स के क्रेडिट नेगेटिव नहीं हो सकते, ओके। इट कैन बी 0 बिकॉज इट द कोर्स मे बी नॉन क्रेडिट कोर्स, और इट मे बी ए कोर्स विथ नॉन नेगेटिव वैल्यू और नॉन 0 वैल्यू। देन प्राइमरी की, सो अब आपने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। सो आपने लगाया प्राइमरी की, कौन से कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है, आपने लिख दिया आईडी, ठीक है। सो प्राइमरी कीवर्ड है, की इज ऑल्सो कीवर्ड, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, एंड देन स्पेस दे करके आपने यहाँ पर लिख दिया आईडी, ठीक है। सो ये हम किस, सो नाउ यू कैन सी दैट हाउ टू स्पेसिफाई ए प्राइमरी की, ठीक है। सो आईडी कॉलम आपका प्राइमरी की है। नाउ देयर इज वन मोर वे टू डू दिस। आप ये जो प्राइमरी की लिख रहे हैं ना यहाँ पर, यहाँ ना लिखते हुए सीधे सीधे यहाँ भी लिख सकते थे प्राइमरी की, तो आपको आईडी टाइप करने की जरूरत बच जाती है। दैट मीन्स यू कुड हैव रिटन लाइक दैट ऑल्सो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, प्राइमरी की। सो नाउ एक चीज़ याद रखना है कि जब आप कंस्ट्रेंट यहाँ लिख रहे हैं, जब टेबल कॉलम्स की डेफिनेशन पूरी हो जाती हैं, तो जब कंस्ट्रेंट आप लगा रहे हैं तो इस कंस्ट्रेंट को हम कहेंगे कि हमने इसे एज ए टेबल कंस्ट्रेंट लगाया है। यहाँ हम कह रहे हैं कॉलम कंस्ट्रेंट के तौर पर लगाया है। जब कॉलम की डेफिनेशन के साथ आप कंस्ट्रेंट को लगाते हैं, देन वी से दैट दिस इज अ कॉलम कंस्ट्रेंट। जब हम कॉलम्स की डेफिनेशन खत्म होने के बाद कोई कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करते हैं, देन वी से दैट दिस इज अ टेबल कंस्ट्रेंट। हालांकि कुछ कंस्ट्रेंट ऐसे हैं जो टेबल कंस्ट्रेंट और कॉलम कंस्ट्रेंट दोनों तरीके से लगाए जा सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी की आप देख रहे हो, प्राइमरी की को अगर सिंगल कॉलम वाली की होती तो आप ऐसे लगा सकते थे एज ए कॉलम कंस्ट्रेंट, और ऐसे भी लगा सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए आईडी और डिपार्टमेंट नेम को मिलगा करके आप की बना रहे होते प्राइमरी की, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए, हालांकि नहीं बनाएंगे हम, बट सपोज दैट योर प्राइमरी की हैव 2 और मोर एट्रीब्यूट्स, दोनों 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर के बनी है,
तब आपके पास यही एक अकेला रास्ता है, प्राइमरी की को आपको एज ए टेबल कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। आप यहाँ दोनों जगह नहीं लिख सकते थे कि ये भी प्राइमरी की और ये भी प्राइमरी की। लेट्स से आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने लिख दिया प्राइमरी की, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी आईडी भी प्राइमरी की है और डिपार्टमेंट नेम भी प्राइमरी की है, जो कि गलत है, क्योंकि प्राइमरी की टेबल में एक ही होती है। यू कैन नॉट हैव टू और मोर प्राइमरी कीज इन ए टेबल। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो ना, हम एज ए टेबल कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, एज ए कॉलम कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं। तो दोनों जगह लगाने की चॉइस, जब आपकी प्राइमरी की सिंगल कॉलम से बनकर मिलकर के बनी है तो आप उसे एज ए टेबल कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो, एज ए कॉलम कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो। यू कैन सी दिस टेबल, यहाँ आपकी जो प्राइमरी की है इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 हैं। ऑल 5 एट्रीब्यूट्स इन द टेबल्स आर बिहेविंग एज प्राइमरी की। सो आप इसे यहाँ इनके यहाँ प्राइमरी की नहीं लिख सकते, आपको इसे कॉलम टेबल कंस्ट्रेंट की तरह लगाना पड़ेगा। सो प्राइमरी की कैन बी अप्लाइड एज कॉलम कंस्ट्रेंट एंड टेबल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, दोनों सो वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो की है वो सिंगल एट्रीब्यूट से मिलकर के बन रही है या मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बन रही है। या मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर के बन रही है तो आपको कॉलम्स की डेफिनेशन पूरी हो जाने के बाद ही की लगाना है। दिस इज हाउ यू विल डिक्लेयर ए प्राइमरी की। ओके, नाउ वी हैव सीन वन कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो आप देख सकते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है हमेशा और हमेशा कॉलम कंस्ट्रेंट के तौर पर ही लगाया जाता है। तो आप चाहते हैं कि लेट्स से और आप मल्टीपल नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, देयर इज नो इशू। जैसे आप चाहते हैं डिपार्टमेंट नेम भी नॉट नल हो तो आप यहाँ लिख देंगे सिंपली नॉट नल। तो अब इसमें भी नल अलाउ नहीं होगा। सो नॉट नल इज और कॉलम कंस्ट्रेंट। ठीक है, लेट मी डिलीट वन, सॉरी। चेक कंस्ट्रेंट आपका कॉलम कंस्ट्रेंट होता है, एक सिंगल कॉलम पर लगाते हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट आपका अगेन ये टेबल कंस्ट्रेंट के तौर पर भी लगा सकते हो, कॉलम कंस्ट्रेंट के तौर पर भी लगा सकते हो, हम इसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली यूनिक कंस्ट्रेंट जो है प्राइमरी की जैसा ही है। जैसे यहाँ पर कहीं पे यूनिक कंस्ट्रेंट का एग्जाम्पल है, लेट मी शो यू। अगर कहीं पे है तो कंट्रोल F, सॉरी, यूनिक नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा एक काम कर, मान लीजिए आप चाहते थे कि स्टूडेंट का नाम यूनिक है, सपोज दैट समहाउ, तो आप यहाँ लिख सकते थे यूनिक, सिंपली यूनिक लिख दीजिए, यूनिक। सो ये यूनिक कंस्ट्रेंट लग जाएगा। अब नाम में रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा। और नॉट नल भी लग गया तो आप देख रहे हैं यूनिट और नॉट नल, ये एक तरीके से प्राइमरी की जैसा ही हो गया। हालांकि प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की में क्या होता है, यूनिक भी कंस्ट्रेंट अपने आप इनबिल्ट होता है और नॉट नल कंस्ट्रेंट भी इनबिल्ट होता है। तो प्राइमरी की जे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनबिल्ट कंस्ट्रेंट्स, यूनिक एंड नॉट नल। ओके, क्योंकि वैल्यू यूनिक भी होती है प्राइमरी की और नॉट नल भी होती है। सो वही कंस्ट्रेंट हम यहाँ लगा रहे हैं। तो ये कंस्ट्रेंट आप कितने भी लगा सकते हो, यूनिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो कई बार जब टेबल में आपको सुपर की डिफाइन करना हो ना, तो हम यूनिक कंस्ट्रेंट से डिफाइन करते हैं। और यूनिक कंस्ट्रेंट को अगर आपको सिंगल कॉलम पर लगाना है तो आप सिंगल कॉलम के तौर पर भी लगा सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स पर मिला करके लगाना है तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। सेम प्राइमरी की तरह यूनिक आपको लिखना है और ब्रैकेट में कौन कौन से कॉलम्स मिल करके यूनिक है वो आप लिख सकते हैं। ओके, so this is how you can create tables. So I think you might have understood the create table command. ठीक है, so this is an example. फॉरेन की कंस्ट्रेंट अभी थोड़ी देर के लिए अभी डेफर कर देते हैं, we will discuss that constraint later. हालांकि फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिफाइन करते समय ये वाला पार्ट हम नहीं डिस्कस करना तो चलेगा। फॉरेन की डिफाइन कैसे करेंगे, फॉरेन की आपको कीवर्ड लिखना है, देन किस कॉलम को आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं। सो लेट्स से हम इस कॉलम के डिपार्टमेंट नेम को फॉरेन की बनाना चाहते हैं। सो डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। रेफरेंसेस, ये कॉलम किसको रेफर करेगा, किसको कहाँ जा करके इसकी वैल्यू क्रॉस चेक करना है, यू आर सेइंग दैट। सो वी आर सेइंग दैट कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नेम है, स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम है, दिस डिपार्टमेंट नेम शुड बी चेक्ड विथ, रेफरेंसेस का मतलब है कि दिस डिपार्टमेंट नेम शुड बी चेक्ड विथ डिपार्टमेंट टेबल्स डिपार्टमेंट नेम। तो आपने टेबल लिखा, पहले किस टेबल के कॉलम से चेक करना है, डिपार्टमेंट टेबल के। कौन से कॉलम से चेक करना है, डिपार्टमेंट नेम से।
सो यार यू आर इम्पोजिंग दैट कि स्टूडेंट के नाम के सामने जो डिपार्टमेंट लिख रहे हैं वो डिपार्टमेंट टेबल में होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर इम्पोजिंग दैट कि स्टूडेंट के नाम के सामने कोई ऐसा डिपार्टमेंट ना आ जाए, एंटर कर दिया जाए जो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बिकॉज यू नो दैट एज पर द डिजाइन, आपको डिजाइन से याद होगा डिपार्टमेंट टेबल कहाँ से बनी है, डिपार्टमेंट एंटिटी सेट से। और डिपार्टमेंट एंटिटी सेट क्या कंटेन करता है, ऑल डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मास्टर टेबल, यू कैन से डिपार्टमेंट टेबल इज अ काइंड ऑफ मास्टर टेबल। एंड जब भी आप किसी भी टेबल में डिपार्टमेंट नेम एंटर करते हैं तो आप मास्टर टेबल में कंफर्म कर लेंगे कि ये डिपार्टमेंट नेम जो हम एंटर कर रहे हैं डेटाबेस में ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इट यू आर पुटिंग ए चेक सो दैट कोई भी रॉन्ग इन डिपार्टमेंट नेम एंटर नहीं हो जाए स्टूडेंट के सामने गलती से। सिमिलर चेक कंस्टेंट आपने फैकल्टी के साथ भी लगाया होगा, याद है आपको, इंस्ट्रक्टर के साथ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, दिस इज हाउ फॉरेन की वर्क्स। ठीक है, ऑन डिलीट सेट नल ये बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम फॉरेन की कंस्टेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसे फॉरेन की को ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, यहाँ भी डिफाइन कर सकते थे, डिपार्टमेंट नेम वेरकैट 20 रेफरेंसेस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट/डिपार्टमेंट नेम, यहाँ भी डिफाइन कर सकते थे इसको। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से आप उठा करके यहाँ रख देते तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इतना रिपीट करने की, आप यहाँ भी लिख सकते थे रेफरेंसेस डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट नेम। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स दैट यू कैन अप्लाई। ओके, वन मोर थिंग, कंस्ट्रेंट्स को कई बार आप नाम देना चाहते हैं तो आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे लेट मी शो यू, let's discuss these examples. So suppose that I have created a table, create table person, id integer ले लिया आपने, last name varchar 255 ले लिया और not null constraint लगा हुआ है, first name varchar 255। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कंस्ट्रेंट कीवर्ड लिखा आपने, कंस्ट्रेंट स्पेस पी के अंडरस्कोर पर्सन, ये ब्रैकेट ड्रॉप कर देना है। ये ब्रैकेट जो है सिंपली मैंने ये डिनोट करने के लिए लगाया है कि ये पार्ट ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस टेबल में जब हम डिफाइन कर रहे थे, यहाँ डेफिनेशन कर रहे हैं, किसी भी की को कोई नाम नहीं दिया है। बट समटाइम्स इट मे बी दैट आपकी नीड हो कि आप किसी कंस्ट्रेंट को कोई अपने चॉइस का नाम देना चाहते हैं। हालांकि जब आप अपना कोई भी नाम इशू नहीं कर रहे हैं ना, किसी भी कंस्ट्रेंट को कोई नाम नहीं देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक डेटाबेस अपना नाम आप ऐड कर देता है। सो एवरी कंस्ट्रेंट इज गिवन ए यूनिक नेम बाय द डेटाबेस इंटरनली। जब आप ये कमांड रन करते हैं, सो डेटाबेस विल गिव ए नेम टू द कंस्ट्रेंट। एंड समटाइम्स हो सकता है आप कंस्ट्रेंट को नेम से रेफर करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू मैनिपुलेट करना चाहते हैं। सम डेटाबेसेस ऑफर्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग द ट्रांजेक्शंस, लाइक ऑरिकल के साथ PL SQL आता है। सो अगर आप किसी कंस्ट्रेंट को उसके नाम से रेफर करना चाहते हैं तो जो डेटाबेस जो नाम देता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टिपिकल होता है। ओके, सो यू मे वुड लाइक टू गिव ए रीजनेबल नेम, एक अच्छा नाम आपने यूजफुल नेम आप देना चाहते हैं जो आपके काम आए, आसानी से आप उसे रिमेंबर रख पाएँ। सो यू कैन गिव योर नेम ऑल्सो। सो आपको अगर किसी कंस्ट्रेंट को नाम देना है तो आप लिखेंगे कंस्ट्रेंट, कीवर्ड है ये, स्पेस कंस्ट्रेंट का नाम, जो भी नाम आपको देना है, फिर कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दीजिए। जैसे इस केस में मैंने जो प्राइमरी की है इस टेबल की ID, इसको नाम दिया है कंस्ट्रेंट को PK_person। ठीक है, PK फॉर प्राइमरी की, मैंने वैसे ही अपना नाम वैसे ही चूज कर लिया, आप चाहे कुछ और नाम चूज कर सकते हैं। सो यू कैन गिव द नेम टू एनी कंस्ट्रेंट, फॉरेन की को भी नाम दे सकते हैं इसी तरीके से। लेट मी शो यू इफ आई हैव एनी। चेक कंस्ट्रेंट को भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैंने देखा हुआ है एज इंट चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सो पर्सन के में मैंने एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। समटाइम्स आप चाहते हैं कि एज 18 से ऊपर हो तो चेक कंस्ट्रेंट इस तरीके से लगा सकते हैं। वी हैव सीन दैट वन एग्जांपल। जैसे आप देखेंगे चेक कंस्ट्रेंट को आप नाम देना चाहते हैं तो आपने लिखा कंस्ट्रेंट, ये कीवर्ड है। ठीक है, ये बाद में करना पड़ता है आपको नाम, जब आपको बाद में डिफाइन करना पड़ेगा ये। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो चेक कंस्ट्रेंट है उसे कॉलम कंस्ट्रेंट के तौर पर अब लगा रहे हैं। देखिए चेक में नाम आपने यहाँ डिफाइन नहीं किया, जब आपको नाम देना है किसी कॉलम को तो नीचे देना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम के साथ में डेफिनेशन में नाम नहीं दे सकते आप। तो आपने लिखा कंस्ट्रेंट चेक पर्सन, नाम दे, ये उसका नाम है कंस्ट्रेंट का और ये चेक कंस्ट्रेंट है। तो अब इस चेक कंस्ट्रेंट को आप इस नाम से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपना नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है चेक
अच्छा, दो एक साथ मल्टीपल कॉलम पर लगाना है तो आप लगा सकते हैं एज ग्रेटर देन 18 एंड सिटी नॉट इक्वल टू ग्वालियर, ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, आई एम नॉट श्योर कि कॉलम के सामने जब हम डेफिनेशन देंगे तो नाम लगाएंगे, नाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आई हैव नॉट सीन एनी एग्जांपल, आई गैस के आई एम नॉट श्योर, मे बी नाम दे भी सकते हैं। आप एक बार आप काम करेंगे कि आप चेक, लेट डू वन एक्सरसाइज। आप जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तब आप करके देखिएगा कि कॉलम के नाम के सामने जब आप कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तब एक उसे नाम दीजिए, कंस्ट्रेंट स्पेस दैट। आई थिंक इट शुड वर्क। आई हैव नॉट टेस्टेड है। नहीं, आप कंस्ट्रेंट को अपना नाम दे सकते हैं, जनरली डेटाबेस अपने आप नाम देता है। व्हाट आई एम सेइंग दैट कि ये जो कंस्ट्रेंट जैसे मैंने लिखा, ये तो कॉलम कंस्ट्रेंट हो गया, आपको दो कॉलम्स पर कंस्ट्रेंट लगाया है चेक आपने, ठीक है। सो दैट मीन्स चेक कंस्ट्रेंट कैन बी इम्पोर्ड ऑन 2 or more columns जॉइंटली। नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जैसे ये चेक कंस्ट्रेंट मान लीजिए एक ही कॉलम पर लगाया होता है, अपने कॉलम पर, जैसे पिछले केस में, क्या मैं यहाँ पर 1 मिनट कहाँ था चेक कंस्ट्रेंट, यहाँ, क्या मैं यहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट को नाम दे सकता हूँ? नहीं, आई थिंक दे सकते हैं। यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट लिखेंगे, फिर कंस्ट्रेंट का नाम लिखेंगे एंड देन एज इंट चेक, यहाँ लिखेंगे, सॉरी, एज इंट इंटीजर टाइप का हो गया, देन कंस्ट्रेंट नेम एंड देन चेक। ठीक है, आप चेक करिएगा इसको, या एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, लेट्स डू इट, अब लेट्स क्रॉस चेक इट, सो कंफर्म हो जाएगा। मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैंने कहीं टेस्ट नहीं किया, बस ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया, सो आई थॉट लेट्स टेस्ट इट। लेट्स से क्रिएट टेबल, कैन आई कॉपी इट, कॉपी करके देखते हैं, पेस्ट हो जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। कॉपी, यस, पेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो आई वांट टू मेक, मल्टीपल लाइन में चला गया ये, सब कैसे जाएगा आप? हाँ, क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई, अरे यार, हाँ चलिए एक लाइन में आ गया। सो लेट मी चेंज द नेम ऑफ टेबल, बिकॉज दो टेबल के नाम सेम नहीं हो सकते। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज इंट, लेट्स से कंस्ट्रेंट, और लेट्स से माई चेक नाम दे देते हैं इसको। आई एम नॉट श्योर इट विल वर्क और नॉट, लेकिन करना चाहिए, इंट्यूशन, माई इंट्यूशन, हाँ ठीक है, ओके। सो दैट मीन्स आप कॉलम के साथ भी नाम दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर चेक कंस्ट्रेंट विल वर्क। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, हमारा हर समय आप नहीं चेक करते हैं, सो मेरे अभी दिमाग में आ गया, सो आई थॉट के लेट्स चेक इट। नाउ वन मोर कंस्ट्रेंट इज लेफ्ट, दैट इज डिफॉल्ट। सो समटाइम्स क्या होता है कि आप चाहते हैं किसी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू रहे। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से सैलरी के केस में आप चाहते हैं कि अगर किसी पर्सन की सैलरी आप एंटर नहीं कर पा रहे हैं, यू डू नॉट नो द सैलरी वाइल इंसर्टिंग द इन्फॉर्मेशन, सो डेटाबेस अपने आप एक डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर ले। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, टेबल की डेफिनेशन के टाइम पर लेट्स से सैलरी इज द नेम ऑफ द कॉलम, डेटा टाइप हो गया है सैलरी का, एंड देन डिफॉल्ट स्पेस देकर के आप वैल्यू लिख लीजिए। तो ये वैल्यू न्यूमेरिक हो सकती है, ओबियसली कॉलम के कंस्टेंट जैसा कॉलम है उसी हिसाब से डिफॉल्ट वैल्यू आपको देनी है, ठीक है। सो अगर आप सोचें कि मैं यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू दे दूँ, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओके। डेटा टाइप से मैच करना चाहिए। सो ये इंटीजर है, ओबियसली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, देयर इज नो इशू। सो डिफ़ॉल्ट सैलरी इज 80,000। तो इस केस में इंस्ट्रक्टर की जो डिफ़ॉल्ट सैलरी अपने 80,000 कर दी, तो जब भी आप डेटाबेस में इंसर्शन करेंगे, अगर आप सैलरी कॉलम की वैल्यू देना छोड़ देते हैं तो डेटाबेस अपने आप इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। सिमिलरली लेट्स से डिपार्टमेंट नेम, आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट नेम अगर किसी इंस्ट्रक्टर का अवेलेबल नहीं है एंड डिफ़ॉल्ट शुड बी कंप्यूटर साइंस, तो यू कैन डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट लाइक दैट, okay. So default value sometimes you would like to put, so you can do in this way, ठीक है।
मैंने आपको कुछ डेमोस्ट्रेशन करके नहीं दिखाया है, बट देर इज़ नथिंग टू डेमोस्ट्रेट। आपको सिर्फ अब ये काम करना है कि आप एक सैम्पल अलग से डेटाबेस बना करके इन टेबल्स को एक एक करके रन करके देखिए, खुद टाइप करिए और रन करिए, ठीक है, इन टेबल्स को, या इनके सबके नाम बदल बदल कर, क्योंकि ऑलरेडी आपने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, तो क्लासरूम 1, डिपार्टमेंट 1, इस तरीके से टेबल को क्रिएट करके आप जस्ट वर्कआउट करिए, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न कि इंस्टीडी कंस्ट्रेंट कैसे डिफाइन करते हैं एंड हाउ टू क्रिएट द टेबल्स। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। सो आई विल एक्सपेक्ट दैट कि आप इनको एक एक करके ये टेबल्स क्रिएट, जस्ट प्ले विद दीज कमांड्स, और आप अपनी मर्जी की कुछ भी टेबल्स बना करके देखिए डेटाबेस में, एंड ट्राई टू पुट सर्टेन कंस्टेंट्स एज पर योर चॉइस, सो दैट यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप देख सकते हैं, चेक कंस्टेंट के साथ हम इन ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार आपको रेंज ऑफ वैल्यूज देना हो ना, कि आपकी जो वैल्यू है वो इसमें से हो, तो आप इन कंस्टेंट इनकी मदद ले सकते हैं। सो चेक फॉर एग्जांपल सेमेस्टर इन, ठीक है, सो आपने लिखा चेक, ब्रैकेट में कर दिया सेमेस्टर की जो वैल्यू है, सेमेस्टर की वैल्यू है ना इन चारों में से होना चाहिए, फॉल, विंटर, स्प्रिंग, समर। सो इन ऑपरेटर की मदद से आप चेक कंस्टेंट इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि आप कुछ फिक्स वैल्यू देना चाहते हैं कि आपकी वो वैल्यू है इसमें से हो। फॉर एग्जांपल समटाइम्स किसी जगह पर अगर ग्रेड है तो आप लिख सकते हैं चेक ब्रैकेट में ग्रेड इन एक सेट ऑफ वैल्यूज दे दीजिए। सो चेक कंस्टेंट लगाने का एक ये और तरीका है। ठीक है, सो आप इन सब के साथ वर्क करिए। ये थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाइए, नॉट, डिलीट, कास्ट, ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट सेट नल, ये जो वैल्यूज हैं हम ये फॉरेन की के टाइम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर।